All right, guys, we're here to talk about something that happened in the world of cricket, especially on the Indian team side. एक काफी बड़ी न्यूज का अनाउंसमेंट आया है रविचंद्रन अश्विन retiring from Test cricket. First initial thoughts, Chetan bhai. Bhai, he is a legend, pure legend. It's a big, big loss for Indian cricket कि रवि जनरल अश्विन जैसा player all of a sudden has to retire. I Yeah, don't want to put point fingers क्यों क्या कैसे, but it was a shock. You can't expect such a big player. India's second highest wicket taker and seventh highest wicket taker of all time to retire suddenly. Like Kohli is not that strong, but he's that famous. I think Ashwin bowlers के term में he's right at top as one of the legends, and it's a big loss for India. I think जो सबसे इंटरेस्टिंग था मैंने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब रोहित शर्मा ने इंटरेक्ट किया राइट सो ही सेड he was basically thinking or he got to know when he landed in Perth, right? So basically there was something on Ravichandran Ashwin's mind, right? हमने अपने कुछ वीडियोज में बात भी करी थी कि how lost is this Indian bowling lineup when it comes to the initial of India Australia series. तो कुछ तो अंदर था, but I think to your point, without focusing on on the what actually happened and without speculating it, it is about the loss not just to Indian cricket, I think to the world cricket. He was one of the finest off spinners जो आज की डेट में खेल रहा था, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, राइट? सो it is a big loss from a spectator, from a game lover standpoint. I wish him all the best, obviously, but I think बहुत interesting होने वाला है Indian team का combination now that he's out of the selecting 11 for all formats of the Indian game. आपकी क्या थिंकिंग है कि थर्ड टेस्ट के बाद एकदम से सडन रिटायरमेंट क्यों? सीरीज के लास्ट मैच में भी बोल सकता था that I am taking off. He is just flying on the day, like last day of the test match, उसी रात को he flew back to India. Like एक ये suddenly जो इसके mindset में हुआ है कि watching the match, I'm not playing, let's forget about it. I just want to retire, end my cricketing career. That's about it. Like उसी दिन उसने decide करा है, या ये चीजें transpire होती गई from last series to this series, and he foreseeing his future might have been running in his mind Yeah. कि क्या चल रहा है. There's so many things that are not disclosed, and पता नहीं किसी podcast में आके किसी दिन वो बताएगा अश्विन की क्या सब चल रहा था, क्या रीजन था. हम रेडी uh, हैं उनको मिलने के लिए अपने शो पे, yeah. बट आई थिंक मैं कुछ रोहित शर्मा के ही उसी इंटरव्यू से क्यूज ले रहा हूँ, राइट? जैसे रोहित शर्मा ने बोला कि उनको पता चला जब वो पर्थ टेस्ट के लिए आए, जो जबकि 3-4 दिन हो चुके थे इस गेम को, राइट? सो देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड बिफोर रोहित शर्मा लैंडेड. रोहित शर्मा ने बोला, उन्होंने उनको बोला कि स्पेशली तुम पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए रुको, राइट? तो पिंक बॉल टेस्ट मैच तो लास्ट मैच था, एक टेस्ट मैच के लिए और क्यों रुके रविचंद्रन अश्विन, राइट? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसा क्या हुआ उन 3-4 दिन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर आए अश्विन, और फिर पहले टेस्ट मैच के 3-4 दिन बाद ही उनको मन किया कि वो चल वापस चले जाएं. So I think I agree with you that there was something more than just cricket that was happening behind the scenes. Um, काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर has a lot to do with it, which obviously is a lot of speculation. But I think वही है. I think again रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि he doesn't want to speak on that subject, and he will let Ashwin speak on it when he's ready to speak on it, right? And I think that's how we should respect that. I think that was very well said by Arvind. Yeah. मैंने एक लिस्ट बनाई है Uh-huh. पांच पांच रीजंस की कि क्या हो सकता है Okay. कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन ही डिसाइडेड. ठीक है. एक तो है कि कॉन्स्टेंटली लीविंग हिम आउट, his frustration that Yep. they're constantly leaving him out for a fourth pacer, Yep. right? आपका सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑल इन टेस्ट हिस्ट्री को आप फोर्थ पेसर मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और ये हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स के लिए इतने बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप करते हो.
जिसके सबसे हाईएस्ट 5 विकेट हॉल हैं, सबसे हाईएस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स हैं इंडिया में किसी की तरफ से भी, उस प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हो फॉर दीज मेगर प्लेयर कंडीशनल. सो दैट आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को उसके ऊपर रखना, दैट इज वन ऑफ द रीजन. दूसरा रीजन मुझे लगता है कि उसकी एज फैक्टर हो गया. उसको लगा कि टीम मैनेजमेंट कंसिडर्स हिम टू ओल्ड. ही वाज 38. उसकी फील्डिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है. उसको ऑलरेडी बहुत पहले क्रिटिसिज्म मिल चुका है. एक बार इंडिया पाकिस्तान मैच में उससे कैच भी ही छोड़ा था, उस चक्कर में वो काफी क्रिटिसिज्म मिला था. तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. Yeah. थर्ड इज उसको हमेशा स्केपगोट बनाया जाता है बैटिंग फेलियर का, कि लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया. टॉप 5 फेल होते हैं. अश्विन जडेजा हैव टू सेव दैट. ही हैव सेव्ड द कंट्री सो मेनी टाइम्स. अ गाय विद 6 centuries, a mainline bowler with 6 centuries has saved the country so many times. Yes. बट उस पे हमेशा ब्लेम आ जाता है कि तुमने लोअर ऑर्डर में एज अ बैट्स तुम्हें ऑलराउंडर खिला रहे, एज अ बैट्समैन खिला रहे, और तुम नहीं परफॉर्म कर रहे. तुम्हारी बैटिंग प्रोग्रेस होनी चाहिए. सो उसको एस्केप कोड बनाया जाता है, बैट्समैन को क्वेश्चन नहीं करा जाता. थर्ड, ही कुड हैव कंटिन्यूड. मेलबर्न और सिडनी दोनों स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड है, बट क्वेश्चन आ जाता है कि उसको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. उसको ये बोल ना दिया हो गया नहीं खिलाएंगे तुम्हें. जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को उसको खिलाएंगे, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से उसने छोड़ दिया. फिर मुझे लगता है ही इज ऑलवेज एन आउटस्पोकन पर्सन, राइट? Yes. सो जब टीम मैनेजमेंट के साथ उसने बात करी होगी अबाउट हिज पोजीशन, अबाउट हिज रोल, एंड व्हेन ही सेज दैट those meager like newcomers are taking his position. So there might have been a rift created between the top management, the captain, and him. So उस वजह से could have been one of the possible reason. And the condition किस पे भी हुआ है वो हमें नहीं पता. That will again will be revealed later. But same yardstick I think बैट्समैन पे नहीं लगता, कंडीशनल सिलेक्शन का. ओके, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, 2 फास्ट बॉलर कराएंगे, 2. क्यों भाई फिर कोहली को स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे क्यों खिला रहे हो? मत खिलाओ, नहीं खेली जाती स्पिन. बट अश्विन को बाहर निकाल देंगे कोई स्पिनर है. आई थिंक कंडीशनल सिलेक्शन डज नॉट मेक सेंस ओनली इन बॉलर्स. अगर ये करना है तो बैट्समैन पे भी वो अवेलेबल होना चाहिए. बैट्समैन वही 6 रहेंगे, चाहे फास्ट बॉलिंग कंडीशन है चाहे स्पिनिंग ट्रैक है, वही 6 रहेंगे. बट हमारे बॉलर चेंज हो जाएंगे स्पिनिंग कंडीशन. सो अगेन अश्विन हमेशा आउटस्पोकन रहा है कि हाउ गेम इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बैट्समैन दैन बॉलर. सो ये आई थिंक कोई भी रीजन हो सकता है. बट अगेन आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ रविचंद्रन अश्विन इन, एंड आई एम ट्रूली गोइंग टू मिस हिम, एंड इट वाज शॉकिंग अनाउंसमेंट. Yeah, I think to be on the so-called lighter note, I think she's still around for the IPL. ये तुम्हें IPL देखने को मिलेंगे. I think that also to your earlier point, which is about, I think जो इतने आपने 5 point out किए, right? I think मेरे हिसाब से, or I think what you're pointing out is just the mismanagement of how the board is handling him, the team selectors are handling him. अजीत अगरकर खुद एक बॉलर है, राइट? और उसके बाद भी टीम सिलेक्शन में अगर इस टाइप के व्यूज अगर और चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, then I think there is something that needs to be done at a much higher level than at this team selection level. And I think that's where subcontinent teams, मैं तो इंडिया की बात नहीं करूंगा, subcontinent teams have to come out of this mindset where bowlers are considered as the secondary to the batsman. It is an equal game, and it's not about the batsman who essentially always takes the limelight. ये गेम भाई है. बट गेम ही ऐसा, फॉर्मेट ऐसा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि इट इज अनफेयर. इट इज अनफेयर, Yeah. आई नो, बट इट इज अनफेयर. बट हमेशा बैट्समैन ज्यादा पॉपुलर रहेंगे बॉलर से. बॉलर का काम वो गधे घोड़े वाला है, आके काम करते रहो, छक्के खाओ, विकेट ले लिया. बट बैट्समैन सेंचुरी मार के सेलिब्रेट करेगा, बॉलर विकेट लेके छोटे छोटे विकेट लेके खुश होता रहेगा. बस मैन ऑफ द सीरीज मैं हाईलाइट. मैं इस पे एक बात बोलता हूँ, राइट? जैसे कल के इंडिया का जो गेम था, the 7 wickets that fell in that format of 18 overs,
I think that was a very strong, level of game. But I was Oh, purely definitely. just bowling, dominating the game, right? So Yeah. I personally think कि batting का अगर fun part है game का, bowling भी उतना ही fun part of the game है. It's just that आप सही कह रहे हो. It has just been given from a, I don't know, marketing standpoint or whatever standpoint, sales standpoint. It has been given uh, that this is a game of batsmen. मुझे तो बहुत entertaining लगा. कल का session is a prime example of that from a bowling standpoint. मैं और Yeah, आप खुद match. बोले तो Yeah. हमें तो आता है, so we are a little biased as well. No, no, the match was good, but again, Ashwin के point पे आते हैं. He will be seen in IPL and Tamil Nadu Premier League Yes. probably. आज मास्टर स्ट्रोक होगा अभी. ऑस्ट्रेलियन मीडिया को उसको एज अ कमेंटेटर रोक लेना चाहिए. लाइक द अमाउंट ऑफ स्टोरी एंड द अमाउंट ऑफ टीआरपी जिस चैनल पे वो कमेंट्री कर रहा होगा विल बी नेक्स्ट लेवल. सो वो कर लेना चाहिए. बट आई थिंक ही इज अ वेरी फैमिली मैन. ही गॉट वेरी इमोशनल Yeah. ड्यूरिंग हिज स्पीच एज वेल. और टीवी पे क्लिप्स भी दिखाया है कि he was in tears when Kohli was hugging him. So Yeah. it was it might be an emotional moment for Ashwin. So he might need support of his family. But again, hats off. Ashwin की memories पे आ जाते हैं. Like Yes. there's so many first glance of him being a superstar. मुझे याद है in an IPL final in that season when Chris Gayle was berserk. No bowler was able to get him out. Chennai Super Kings first or second over of the match given to Ashwin, and he gets a nick on Chris Gale caught behind by Dhoni, and the match was over there. And then the final was a very boring match just because superstar Ashwin got Chris Gale out early. By far the best well left by any batsman in history was by Ashwin. जो जो उन्होंने वो वाइड छोड़ी है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में. Yes. वो जो मैच था यार, India versus वो Pakistan. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच Yes. में जो उन्होंने चौका मार के जिताया, वो जो वाइड छोड़ी अगेन, वो मेमोरी कभी भूल ही नहीं सकते अश्विन की. लाइक क्रेजी द अमाउंट ऑफ लाइक मैन ऑफ द सीरीज लेता जा रहा है 2016 से 19 में. लाइक जो होम में उसकी डोमिनेंस रही है, like the amount of wickets he has taken has been like crazy and phenomenal, and like should be truly applauded, Ashwin. आप मेमोरीज की बात कर रहे हैं. मेरी मेमोरी अश्विन की is actually all tied to India Australia series. The way he sets up Smith, right? Yeah, Smith hates him. The way he sets up Lushan, right? yeah, They both hate him, right? He's the only bowler who essentially Travis Head respects, right? yeah, जस्टिन लैंगर ने लास्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बोला था कि ही आउटसाइड कोहली he is the biggest threat from an Indian bowling standpoint, right? So those are my memories of India, Australia and Ashwin. और मुझे वही interesting लग रहा है in this whole episode is for Ashwin to retire in India, Australia series. Right? in India Australia series is famous for many superstars retiring. Like all of a sudden क्या हो जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही धोनी माही भी रिटायर हो गए, एंड कुंबले भी उसी में सडनली रिटायर हो गए. सो ऑल ऑफ अ सडन इट इज नोन फॉर रिटायरमेंट. बट एक मैं आपको बता देता हूँ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिस इज नॉट द ओनली रिटायरमेंट ऑफ दिस सीरीज. देयर कुड बी अ थ्योरी, और लाइक मेरी तरफ से आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह दो कि अश्विन को पहले रिटायर कर दिए. मे बी अ सुपरस्टार इज रिटायरिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट मैच. उनको अच्छा बड़ा फेयरवेल देने के लिए अश्विन को बोला आप पहले निकल जाओ. बट मे बी लाइक कोहली और रोहित, एनी वन ऑफ देम. My answer is Rohit Sharma. या सो I can कैन see बी. your face. I think I think you read it very right. I think my reading is as well the same. I think I read it for Rohit Sharma in his face, right? और I think उन्होंने बात भी करी कि सबका दिन आने वाला है, right? I think there's a lot of players and who are in their OG, and they would be
people who would be retiring soon from his generation. So there was definitely that in there. ऑस्ट्रेलियन टीम से भी मुझे लग रहा है उस्मान ख्वाजा का लास्ट सीरीज होने वाली है. Oh, really? Yeah, he's 38. I think there's other batsmen in consideration. वो सिडनी से है और सिडनी में Right. लास्ट मैच है. So Yes. I think उनको वहां पे जाके रिटायर करेंगे. एक इनका कॉन्स्टस करके प्लेयर है, वेरी Okay. प्रॉमिसिंग इन द शेफील्ड शील्ड और Yes. डोमेस्टिक बहुत अच्छा कर रहा है. सो ही कुड हैव बीन रिप्लेसमेंट. मे बी मैक्सवेनी को हटा दें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से और उसको ले आए. बट अगेन वी आर ऑल डाइग्रेसिंग. कमिंग टू अश्विन अन्ना, लाइक Yeah. एक वेरी वेरी गुड करियर, वेरी थैंकफुल जो उन्होंने हमें इंडिया में होम सीरीज एडवांटेज सिखाई है. आई थिंक और कोई स्पिनर इतना हो नहीं पाया, इतना सक्सेसफुल जितना अश्विन हुआ है इंडिया में, जितना स्ट्रांग हो रहा है. I mean, maximum number of 5 wicket hauls from an Indian bowler, right? That's no less feat, right? Which shows the impact he made on any game or any condition which favored, right? He made the most out of it, and he made sure he wo दूसरी टीम का backbone तोड़ दे, right? So I think that goes a long way. Where चाहे कि हिस्टोरिकली आप किसी भी बॉलर को ले लें, चाहे मुरलीधरन को ले लें, शेन वॉर्न को ले लें, ग्लेन मैकग्रा को ले लें, Jimmy Anderson को ले लें, but they are great because they make sure when it's their game and it's their pitch, they convert, right? And that comes out from the fact of, hey, how many 5 wicket hauls or how many 10 wicket hauls you have in the match in the game. Links. So absolutely, right? I think just wishing him the best. Just a sad day for it overall. But thank you, Anna, for all your services to the country. And, hopefully we'll see more entertaining game from you and some fireworks in IPL. Yeah, definitely. Ashwin, on the way. Thank you, guys.